Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. This is Navratan, your English teacher, and I have brought for you another chapter, another video of the lesson Footprints Without Feet. Students, I welcome you to RPS online classes. You know that our school is running online classes for you in this time of lockdown. So, students, you must pay attention towards this. In class 10th, this chapter 5 of the book Footprints Without Feet, this is the title lesson. The title of the book is Footprints Without Feet, and this is the fifth lesson of the book. Let us read this. You imagine, students, footprints without feet. Is it possible? बिना पैरों के footprints हो सकते हैं? This is very interesting story. This is a novel which was written by H.G. Wells. H.G. Wells ने एक novel लिखा था, and it was written. The story was about a scientist. The scientist was invisible. The scientist was invisible. His name was Griffin. Anyhow, he uh, managed to disappear. Managed to get transparent. Actually, his body became as transparent as glass and as solid as glass. Transparent भी थी और solid भी थी. ठीक है, but he was a lawless person who had no respect for the law. So this story is about Griffin, a scientist, a great scientist. We can say he could do a lot for the human beings. This is an imaginary story of H.G. Wells, who was a great novelist and great author. But this story will tell us how science could be used for the destruction in the world. Science को नुकसान करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. So a person who is a scientist, he can serve the humanity, and if he is not a good person, he can destroy the humanity. So this was written before around maybe 100 or around 200, 1719 around, I think it was written. 18, it means around 200 years ago it was written, and it was imagined. We can say it was imagination of H.G. Wells about the misuse of साइंस. तो ब्लाइंडली साइंस के पीछे भागना और उसको जो ना एक गलत तरीके से रिसर्च करना भी, इट इज़ अ डेंजर टू द ह्यूमैनिटी. यही इस लेसन में डिस्कस किया गया है. चलिए कहानी पढ़ते हैं ग्रिफिन की, जो कि गायब हो गया था. क्वेश्चन इसने आपसे किया है कि कैन आई बिकम इनविजिबल. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. डज ही यूज़ और मिसयूज इज डिस्कवरी. यही तो क्वेश्चन है, यूज़ करता है या मिसयूज़ करता है. रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. कैसे विजिबल हुआ. वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स. क्यों वो गलियों में यहाँ वहाँ घूम रहा था. The two boys, let me read it. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints on a pair of barefoot. नंगे पैरों के मडी इम्प्रिंट्स, कीचड़ से भरे हुए निशान दो बच्चों ने देखे. टू स्टूडेंट्स वर देयर. उन्होंने नोटिस किया एक सीढ़ी के ऊपर, वाइट जो सीढ़ियाँ थी उनके ऊपर. व्हाट वाज अ barefooted man doing on the steps of a house. barefooted man कर क्या रहा था स्टेप्स के ऊपर. इन द मिडल ऑफ द लंडन. एंड वेयर वॉज द मैन. आदमी कहाँ है. यानी फुट स्टेप्स तो दिख गए, आदमी तो है ही नहीं. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. जैसे उन्होंने बड़े ध्यान से देखा उसको, एक रिमार्केबल साइट है ना उनकी आंखों के सामने आ गई. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. और एक फुटमार्क और हो गया फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से एक निशान और हो गया. एक्चुअली ग्रिफिन इनविजिबल था. He was standing on the steps. So when the students were looking at him, तो students could not see Griffin, but Griffin could see the children. जो दो boys थे उनको वो देख सकता था, इसलिए वो नीचे उतरा तो fresh footprints बन गए, निशान बन गए. Further footprints followed one after the another, descending the steps. यानी फुटस्टेप्स बनते चले गए एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स, नीचे उतरना द स्टेप्स, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और सीधे स्ट्रीट में आ गए. यानी निशान आते चले गए, सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते और गली के अंदर आ गए.
द बॉयज फॉलोड, बच्चों ने फॉलो किया. फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स होता है सरप्राइज्ड. अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो जो मडी इम्प्रेशंस थे, जो कीचड़ के इम्प्रेशंस थे, निशान थे, वो फेंटर यानी धुंधले और धुंधले नहीं हो गए, बिल्कुल धीरे धीरे. अब वो कीचड़ लगा हुआ था, धीरे धीरे उतरता चला गया और उनके जो निशान थे वो धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गए. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, है ना. इस मिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन सिंपल है. द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. ये जो बिविल्डर्ड मतलब सरप्राइज जो बॉयज थे, हैरान परेशान बॉयज थे, ये किसको फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख जाएगा, और जिस चीज़ के आर पार आपको दिखेगा वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. बहुत एक्सपेरिमेंट किए उसने ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल यानी अदृश्य किया जा सकता है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs. swallowed मतलब गटक जाना, खा जाना. उसने ड्रग्स यानी दवाइयाँ, रेयर ड्रग्स खाई, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, एंड दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. यानी ग्लास की तरह हो गई, आर पार दिखना शुरू हो गया, लेकिन वो ठोस थी, सॉलिड थी. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन है. ही वॉज रादर लॉलेस पर्सन. बिल्कुल लॉलेस कौन होता है? जो लॉ का बिल्कुल भी आदर नहीं करता है, जो कानून का सम्मान नहीं करता है, यानी कि जो नुकसान करता है, कानून को तोड़ता है. His landlord disliked him. Landlord मतलब जहाँ पे वो किराए पे रहता था. His landlord disliked him and tried to eject him. Eject मतलब घर से बाहर निकालना. भाई अगर हमें हमारा किराएदार पसंद नहीं है तो हम उसको सिंपली कह देंगे कि भाई घर खाली कर दो. तो ये लैंडलॉर्ड था ग्रिफिन का. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इजेक्ट और गेट ग्रिफिन आउट ऑफ हिज हाउस. इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. उसके घर को आग लगाई. टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स. और वहाँ से निकलने के लिए वो ही डिड नॉट वांट टू बी सीन बाय एनीबडी, किसी कोई को देखे नहीं, तो उसको कपड़े उतारने पड़े अपने, क्योंकि कपड़ों के साथ वो दिखता था, बिना कपड़ों के वो नहीं दिखता था. यानी हिज बॉडी वॉज ट्रांसपेरेंट. बॉडी भले ही ट्रांसपेरेंट थी, ये क्लियर था, लेकिन इसमें खास बात ये थी कि कपड़े पहनते ही वो विजिबल हो जाता था. यानी कपड़े विजिबल हो जाते थे, ग्रिफिन विजिबल नहीं होता था. दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर. होमलेस बेघर, वांडरर मतलब यहाँ वहाँ धक्के खाने वाला ट्रैम्प, घुमक्कड़ कह सकते हैं. विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, बेयर नेकेड वो घूमता रहता था. विदाउट मनी, ना पैसे उसके पास थे. क्वाइट इनविजिबल, बिल्कुल इनविजिबल. अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड. यानी सबके लिए इनविजिबल था. हालांकि वो हल्का सा विजिबल कब हुआ, लोगों को कब पता चला? जब उसने, उसका पैर कीचड़ में पड़ गया और उसका जो फुटप्रिंट्स थे वो निशान देने लग गए, तो लोगों ने उसको नोटिस किया. अदरवाइज नोबडी न्यू दैट देयर वाज समबडी वॉकिंग विद द पीपल हु वाज इनविजिबल, विद द पीपल, अ पर्सन, अ साइंटिस्ट हु वाज इनविजिबल. ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज, है ना. बॉयज से तो बच के निकल गया वो. हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. उसके एडवेंचर्स, उसकी कहानियाँ, किस्से ओवर नहीं हुए थे, ख़त्म नहीं हुए थे, है ना. बाय नो मीन्स मतलब बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए थे, बाय नो मीन्स. ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स. गलत समय चुना था उसने लंदन की गलियों में घूमने के लिए. इट वॉज मिड विंटर, बिल्कुल सर्दियों के बीच का समय था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. बिना कपड़ों के काम नहीं चला सकता था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर ऑफ वार्मथ, फॉर वार्मथ. एक बड़ा सा लंदन में स्टोर था, डिपार्टमेंटल स्टोर था, बड़ी सी शॉप कह सकते हैं. उसमें घुस गया वो, किसके लिए? वार्मथ के लिए, क्योंकि उसके पास कपड़े तो थे नहीं. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. क्लोजिंग टाइम, जब उस डिपार्टमेंटल स्टोर का, दुकान का क्लोजिंग टाइम आया, एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू द एक्सपेंस. जैसे ही वो दरवाजे बंद हुए तो बड़ा आसान हो गया उसके लिए. उसने अपने आप को बड़ा प्लेजर दिया, किस? क्लोथिंग और फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, यानी बिना खर्चे की परवाह किए.
अब वो खर्चे की यहाँ परवाह क्यों करेगा, एक्सपेंस की परवाह क्यों करेगा, क्यों करेगा, ज़रूरत ही नहीं है। ही वॉज इनविजिबल, पैसे उसको देने हैं ही नहीं। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, सारे बक्से खोले, बॉक्सेस खोले, रैपर्स फाड़े, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स पहन लिए, फिट जो उसको आए। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रीम्ड हैट, है ना, विजिबल बड़ा शूज़ पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, एक वाइड ब्रीम्ड हैट पहन ली, मतलब जो जिसके बड़े चौड़े किनारे होते हैं, ऐसे एक हैट पहन ली उसने। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, ड्रेस भी पहन ली, विजिबल पर्सन हो गया वो। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, कोल्ड मीट और कॉफ़ी खाने पीने को मिला उसको, मीट खाने को मिला। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि ये बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसमें वाइन भी थी, तो उसने स्वीट्स भी ली, वाइन भी ली ग्रोसरी स्टोर में से, और बड़े मन से उसने एंजॉय किया अपना फूड। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्टेप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, सेटल डाउन यानी सो गया वो किस पे, एक पाइल मतलब ढेर, और क्विल्ट्स बहुत सारी थी, जो क्विल्ट्स थी रजाइयाँ जिनको हम कहते हैं, रजाई जिसको कहते हैं, उनके ढेर पे जाके वो सो गया। बड़ी नींद, चैन की नींद, पूरा दिन का परेशान था, घूम रहा था, ही वॉज विदाउट क्लोथ्स, तो ही स्टार्टेड टेकिंग रेस्ट, सोने लग, सो गया वहाँ पे। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर, है ना, ग्रिफिन हैड मैनेज्ड वेक अप इन गुड टाइम, यानी अगर टाइम से उठ जाता, समय से पहले उठ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक्चुअली वो लेट हो गया। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप टिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो असिस्टेंट्स पहुंचे दुकान को संभालने वाले, तब तक बेचारा सो ही रहा था। When he saw a couple of them, और जब वो उठा तो उसने देखा असिस्टेंट आ चुके हैं, और जब उन्होंने couple of them, उन असिस्टेंट्स को देखा, तो क्या हुआ, अप्रोचिंग, when he saw them approaching मतलब उसके पास आते हुए देखा, अप्रोचिंग मतलब पास आना, ही पैनिक, वो डर गया, पैनिक मतलब डर जाना। ही बिगेन टू रन, भागना शुरू किया। दे नेचुरली गेव चेज, अब उन्होंने भी उसको पकड़ना शुरू किया कि भी हमारी शॉप में हु इज़ दिस पर्सन। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes, और वो कहाँ से बचने का एक ही तरीका था उसके पास, जो न्यूली फाउंड क्लोथ्स से, जो उसने कपड़े मिले थे उसको, ही हैड टू टेक ऑफ ऑल दोज, निकालने पड़े, और फिर वो भाग गया वहाँ से। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, यानी वो बच तो गया वहाँ से, लेकिन फिर से इनविजिबल हो गया, बाहर आ गया, और बिल्कुल नेकेड था, बिना कपड़ों के, चिल जनवरी एयर में, यानी जनवरी की जो हवा थी बड़ी ठंडी, उसमें वो फिर से आ गया वहाँ पे। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल कंपनी कौन सी होती है भाई, जो कॉस्ट्यूम्स बनाती है, जो सीरियल्स करते हैं एक्टर्स के लिए, जो उनके कॉस्ट्यूम्स बनाती है, तो उस थिएट्रिकल कंपनी के अंदर घुस गया वो, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर्स। अबोव एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है, अब उसने कपड़े पहन लिए, तो मुंह पे तो कपड़े पहनता नहीं है कोई, फेस तो उसका ढकता नहीं है, तो शोल्डर्स के ऊपर वो एम्प्टी स्पेस रह जाता, जहाँ तक आपकी स्लीव्स आ जाएगी शर्ट की, आगे जो हाथ बच जाता वो भी एम्प्टी हो जाता। तो इस तरीके से उसने डिसाइड किया कि वो किसी तरीके से कुछ ऐसा करे, उसको कपड़े भी मिलें और खाना भी मिल जाए उसको। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरिड टू ड्रूरी लेन, ये जगह का नाम क्या था, ड्रूरी लेन, जहाँ पे वो घुसा था, थिएट्रिकल कंपनी थी, उसका नाम था शॉप का ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ये जो जगह थी, जगह का नाम था ड्रूरी लेन, और यहाँ पे एक सेंटर थी, मतलब यहाँ पे थिएटर वर्ल्ड मतलब थिएटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो यहीं पे मिलती थी। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, एक शॉप मिल गई उसके अंदर, ड्रूरी लेन के अंदर उसको। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, ऊपर गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। अपने आप को उसने क्या किया, कवर कर लिया, यानी सिर के ऊपर, माथे के ऊपर क्या किया उसने, बैंडेजेस से कवर किया अपने आप को, ताकि लोगों को लगे कि भाई इसके तो फॉरहेड पे चोट लगी हुई है, बैंडेज लगाई। डार्क ग्लासेस पहन लिए ताकि उसकी आंखें किसी को दिखे नहीं।
फॉल्स नोज, नकली नाक लगाई, बिग बूशी साइड विस्कर्स, साइड में जो है ना उसने बड़े बड़े वो पहन लिए जो साइड बर्न्स होते हैं, जिसको हम कलम बोलते हैं, साइड में सिर के जो बाल होते हैं कान के नीचे, एंड अ लार्ज हैट, बड़ी सी उसने एक हैट पहन ली अब अपने आप को छुपाने के लिए। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर, अब उसने सोचा कि एस्केप होता बचना, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए बचने के लिए उसने क्या किया, ही कैलेसली अटैक, कैलेसली मतलब बड़े ही निर्दयता से, क्रूर तरीके से, है ना, ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, शॉपकीपर को उसने पीछे से वार किया, विच ही रॉब्ड हिम, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और फिर उसने उसको रॉब किया, लूट लिया, जो भी पैसे उसको मिले वहाँ से उसने लूट लिए और वहाँ से वो निकल गया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग, अब यहाँ से वो निकल गया, क्राउडेड लंदन की गलियों में तो उसका काम चलने वाला था नहीं, उसने ट्रेन पकड़ी और वो एक ईपिंग, एक विलेज था जिसका नाम था ईपिंग विलेज, वहाँ पहुँच गया, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द होटल लोकल इन, एक लोकल से इन जिसको सराय कह सकते हो, होटल कह सकते हो, रेस्टोरेंट कह सकते हो, वहाँ पे उसने 2 रूम लिए, 2 रूम उसने बुक कर लिए वहाँ पे जाने के बाद, यानी शहर की भीड़ से दूर, फ्रॉम द अवे फ्रॉम द क्राउड्स ऑफ द सिटी, ही वेंट टू अ लोनली प्लेस टू गेट सम सॉलिट्यूड, एकांत के लिए, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, अब ये अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर, यानी सर्दियों में, इन मतलब क्या होती है, सराय होगी, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस कह लो, कुछ भी, गेस्ट पार्लर कह लो, ये अपने आप में एक अनयूजुअल इवेंट था गांव वालों के लिए, क्योंकि ये सीज़न नहीं था। उस गांव के अंदर, ईपिंग के अंदर जितने भी लोग आते थे, दे यूज टू कम इन समर, नॉट इन विंटर एक्चुअली, एंड सो ही केम इन विंटर, in off season, so it was a matter of surprise, it was unusual actually. A stranger of such uncommon appearance, stranger भी था और uncommon appearance का था, appearance मतलब appearance जो इंसान का जो हुलिया होता है, जो रूप होता है, वो बड़ा अनकॉमन था, जिस तरीके से उसने बैंडेजेस लगाई, चश्मे लगाए, सब। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, टंग्स वैगिंग का मतलब होता है ज़बानें चलने लगी, बातें होने लगी, लोगों की जीभें हिलने लगी, मतलब लोग बातें करने लगे कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आया है। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, अब मिसिज हॉल जो थी वो लैंडलॉर्ड की थी, वो लैंडलॉर्ड जो था उस सराय का, उसकी वाइफ थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ, यानी जिसका वो गेस्ट पार्लर था। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने बड़ी कोशिश की ताकि वो स्ट्रेंजर के साथ में फ्रेंडली हो जाए। वो फ्रेंडली क्यों होना चाहती थी, क्योंकि उसको बड़ी मुश्किल से गेस्ट मिला था जो कि उसके मन चाहे पैसे उसको दे रहा था, इसलिए शी वांटेड टू बिकम फ्रेंडली विद ग्रिफिन, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, कोई डिज़ायर बात करने की नहीं थी, और उसने उसको कहा, माई रीजन्स फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, यानी एकांत, डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड मतलब मेरा यहाँ आने का एक ही मतलब है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब ना करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, उसने कहा कि एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस जो है वो ख़राब हो गया है, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मुझसे कोई बात नहीं करे। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, उसको ये लगा कि उसका जो गेस्ट है वो एक सन की आदमी है ना। सन की आदमी क्या होता है, बड़ा चिड़चिड़ा सा होता है, एक काम में लग गया तो उसी में लगा रहता है, किसी बात को मानता नहीं है, एक्सेंट्रिक। तो उसको लगा कि वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने ये भी सोचा कि उसने तो उसको एडवांस में पे कर रखे हैं पैसे। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसिज हॉल ने क्या किया, वो तैयार हो गई किसके लिए, उसको एक्सक्यूज़ कर दिया, माफ़ कर दिया उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को, हैबिट्स को, और इरिटेबल टेम्पर को। टेम्पर मतलब जब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इरिटेबल टेम्पर का बंदा कौन होता है, इरिटेटिंग बंदा होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो चूंकि उसको एडवांस में पैसा मिला, तो मिसेस हॉल ने क्या किया, शी इग्नोर्ड एवरीथिंग, शी वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ एवरीथिंग, उसकी जितनी भी अजीब अजीब हरकतें थी, आदतें थी, उसका अपीयरेंस था, उसने उसको अवॉइड करने की कोशिश की। शी थॉट दैट ही वॉज पेइंग हर मनी, और वो भी एडवांस में उसको पैसे पे कर रहा था। बट द स्टोलन मनी
डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब वो जो पैसे चुरा के लेके आया था वो लंबे समय तक चली नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास रेडी कैश था नहीं देने के लिए। जो लेके आया था, लूट के लेके आया था, रॉब करके लेके आया था ड्यूरी लेन में शॉपकीपर से, तो वो तो दैट वाज ओवर। ही प्रिटेंडेड, तो उसने बहाना किया, प्रिटेंड होता है बहाना करना। हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, क्या बहाना किया कि उसको चेक मिलने वाला है और वो कभी भी आ सकता है और वो पेमेंट वापस कर देगा। तो ये इसका एक वे था ताकि मिसेस हॉल जो है ना उसे पैसे ना मांगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, कुछ समय के बाद में एक बहुत ही क्यूरियस एपिसोड हुआ। क्यूरियस मतलब बड़ा ही अजीब सा, एपिसोड मतलब घटना घटी वहाँ पे अकर्ड। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एक क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज। एक वहाँ पे एक्चुअली विकारेज था, चर्च हम कह सकते हैं उसी गांव के अंदर। उसका जो क्लर्जी मैन था, जो प्रीस्ट था, जैसे पंडित होता है मंदिर में, और उसकी वाइफ वो सुबह सुबह जल्दी उठ गई, अवेकन्ड बाय नॉइजेस, शोर सुन के उठे, इन द स्टडी, उनके स्टडी रूम में। क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स, वो धीरे धीरे नीचे आए, क्रिपिंग मतलब बिना कोई नॉइज़ किए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, चिंक ऑफ मनी मतलब पैसे की आवाज़, जैसे हम कॉइन्स को बजाते हैं। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, कहाँ से निकाले जा रहे थे वो, क्लर्जी मैन के डेस्क से। यानी क्लर्जी मैन ने ये महसूस किया कि उसका जो डेस्क है उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, समबडी वो स्टीलिंग मनी, पैसे निकालने की आवाज़ आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़ एंड विद अ पोकर, बिना कोई नॉइज़ किए, विद अ पोकर मतलब एक मोटा सा डंडा लेके, ग्रैस्प फर्मली इन हिज हैंड, बड़ी मजबूती से उसने डंडा पकड़ा। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, उसने एकदम से धड़ाम से दरवाज़ा खोला और कहा कि सरेंडर, यानी जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ या सरेंडर कर दो, अपने हाथ ऊपर कर लो, उसने कहा। देन टू हिज अमेजमेंट, बड़ा हैरान रह गया वो देख के, ही रियलाइज दैट द रूम वॉज अपीयर टू बी एम्प्टी, रूम तो जो है वो एम्प्टी था, बिल्कुल एम्प्टी, खाली था, मतलब कोई था ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टन्स देखा, एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वॉजन अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई साइन नहीं था, कोई भी वहाँ पे था नहीं, देयर वॉज नोबडी, कोई नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, डेस्क ओपन था और मनी वहाँ से मिसिंग थी, यानी चोरी हो चुकी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन वो यही कहता रहा कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो असामान्य हो, जो अनकॉमन हो। बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इसको रीड किया है, इसको 2 पार्ट में हम फिनिश करेंगे। आई थिंक आज का वीडियो इतना काफ़ी रहेगा। यू रीड इट अप टू हियर एंड राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड डू सम क्वेश्चन आंसर्स, जितना पार्ट हमने पढ़ा है वहाँ तक। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन मीट, आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।